Well, so good evening again to everyone. And what I discussed last time, we'll move ahead to next topic. Okay. So in the last class, in the last lecture, it was discussed about insertion of the root. Is it value for is it working for everyone or not? I mean, tested many chat box I am saying, and people are writing in a different way. So I don't know. Everyone is able to do that yesterday practice or not, whatever I discuss in the lecture. एक बार ये देख लीजिए, what is checking a code रन ही नहीं किया बहुत लोगों ने, कोड को इंसर्ट रूट one. Okay, just see your program now, what you have written. The first one is if value less than this, कितने if लगा दिए? In your program, if else if else, this is wrong. You just check my code. Ashish, if else के बाद क्या लगाया हो, देखो एक बार जस्ट चेक कर लूं. else के बाद if value is this and why this? Just check out if else conditions. Okay. That's why sometimes your code will give na. Syntactically, if you check it, it may not be correct. Okay. What I discussed, you are not doing recursively way. You are trying to say check out and check out. So all conditions you have to read. So that's why this if root is none, return none every time. If root is none, return is none every time. If this is not clearly, so if root value is less than root data, then so it is happening. Where is that? If root value is greater than root dot data, that point you are not else. Okay, this else. This is else of which f? The sequence is not correct. Just check out whosoever is written Ashish. Your sequence is not correct. So sometimes if only in the left it may give, in the right it may not give. So that part you check. Okay. So this code you else conditions, it seems that if real print this the print का हो गया. If search, if root data is target return, if root data is less than this, I don't know if root data target से छोटा है तो ठीक है, टारगेट बड़ा है तो राइट में चले गए. So you write else if root dot data is greater than target.
Instead of else, you write else if. Okay. So moving ahead from the tomorrow lectures, next I will start now finding the lowest value in the BST, deleting a node in a BST. These two things I will discuss. कल रन कर रहा था, आज एरर बता रहा है। वो तुम्हारे सीक्वेंस देखो, शायद फिर से रन, कल कोड रन कर रहे हो, ट्री वाला पार्ट रन नहीं कर रहे होगे, कहीं ट्री कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। ओके, दैट यू चेक। Someone is replying, good. Okay, let's start. शेयर करता हूं। Is my screen visible now? Now OneDrive I am opening. Now I hope it is visible. Anyone can show the thumbs up. Akshat Rastogi, is it visible? Just so you can show thumbs up symbol. Anyone can show thumbs up if it is visible. My board is visible. Anyone just show thumbs up. No one is showing it. Visible or not visible? My board. Mohammed Sani is saying visible. Okay. Yes. Okay. Okay. Great. Great. Just I am starting. A minute, please. So now I will discuss deletion of a node in a BST. Important topic. Today I am discussing. Delete a node तो पहले क्या करेंगे, कोई एक नोड या वैल्यू आपने दिया, कोई टारगेट दे दिया, सपोज एनी टारगेट x in a tree. Target is, you can say, a value
stored in a node, हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वी सर्च x इन ए बाइनरी सर्च ट्री, वो x तो होगा तभी तो डिलीट करेंगे, दैट x may available or it may not be available, and if x is in BST, नहीं है तो रिटर्न कर दो कि नोड ही नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते. If it is in BST, we found, we search that yes it is, then there are, then three possibilities, three different cases where deleting a node must be done. तो डिफरेंट तरीके बन जाएंगे. क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी एक ट्री बनाते हैं और पहले कोड से पहले केस, जो ट्री हम पहले बनाते थे वही बार बार ले लेते हैं. एक हम ट्री बना लेते हैं जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस, नथिंग एल्स. लेट एग्जांपल यहीं पे मैं कर देता हूं. सेम ट्री, then thereafter many tree you can create and see that same BST you just take 7 15 3 8 14 19. अब सपोज क्या क्या ट्री हो सकती हैं, हमें x को डिलीट करना है. x क्या क्या हो सकता है, दिस x कुड बी, जो ये x है वो हो सकता है कि x में भी 3, x में भी 8, x में भी 14, x में भी 7. सो ऑल दीज नोड्स को हम क्या कहते हैं, लीफ नोड. इसको डिलीट करोगे तो क्या होगा, डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस लिंक को रिमूव कर दो. 19 के 7 का है, 7 के पेरेंट्स जो भी हैं इसके लेफ्ट ट्री को डिलीट करना है. 7 इसके लेफ्ट में, राइट में, जस्ट डिलीट कर दो, कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती. देखो लीफ को डिलीट करना है. एक्स फर्स्ट केस 1, केस 1 एक्स may be a leaf node. तो देन क्या करेंगे, रिमूव इट by removing the link. मतलब 7 करना है तो इस लिंक को कट कर दो, इसको लिंक को कट कर दो, रिमूव हो गया. रिमूविंग द कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है. दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस, X may have only one child. कौन कौन से हैं इसमें, एग्जाम्पल देखिए. दिस वन इज ए केस 1. अब केस 2, X में है ओनली वन चाइल्ड. पूरे नोड में कौन कौन से हैं उनको मैं
पहले वो कर देता हूँ, कौन कौन सा है जिनके 1 चाइल्ड है। सो 1 चाइल्ड को रेट करते हैं। दिस कुड बी 1 नोड जिसके एक ही चाइल्ड है, और कोई नोड है जिसके 1 चाइल्ड है। इस पूरे बाइनरी सर्च में ऐसा कोई ट्री नहीं है। सो एक्स में भी नहीं। तो इसको रिमूव करते समय एक्स, सो इन दिस केस x may be 19। प्रीवियस केस में था x क्या क्या हो सकते थे, एग्जांपल में 3, 8, 14, सॉरी ये 7 नहीं 17 होना चाहिए। यस 17 या 18 होना चाहिए, तो इसको 7 नहीं, देन तो बाइनरी नहीं 17 है, 17। ठीक है, x केवल क्या क्या हो सकता है इस केस में, ओनली 1। अगर x के एक ही है तो डिलीट करने में क्या होगा लॉस। इफ वी आर डिलीविंग रेड पार्ट, दिस इज योर केस 2। 19 को अगर डिलीट करेंगे तो क्या लॉस होगा। हमें 19 को डिलीट करना है, पर 17 को क्या करना है, 17 जो है 19 का चाइल्ड है, तो हमें क्या करना होगा। आई एम टेकिंग द रेट, इफ वी आर डिलीटिंग 19 विच हैव दिस, देन क्या करेंगे, कनेक्ट द पेरेंट नोड ऑफ x, जिसको डिलीट करना है वो x है। x क्या है जिसको डिलीट करना है, विच वी वांट टू डिलीट। जिसको कनेक्ट द पेरेंट नोड ऑफ x विच वी वांट टू डिलीट। इसका पेरेंट्स क्या है, दिस इज पेरेंट क्या है इसका 15। सो फॉर इन दिस केस करेक्ट द वी वांट टू डिलीट parent node of x to the child of x। एग्जाम्पल इस केस में क्या है, पेरेंट ऑफ x इक्वल टू 19 इज कितना है 15, एंड चाइल्ड ऑफ x इक्वल टू 19 इज, क्योंकि मालूम है कि एक ही चाइल्ड है, इज 17। सो व्हाट वी डू, कनेक्ट 15 एंड 17। आप कनेक्ट करेंगे 15 और 17 के, तो कहां जाएगा 15 और 17 चाइल्ड था। सो 17 विल बी, डिपेंड करता है कि कितना, चूंकि इसका राइट चाइल्ड है, लेफ्ट इज ग्रेटर देन और लेस देन। अगर 17 जो है 15 से छोटा है तो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, इफ 17 15 से बड़ा है तो राइट चाइल्ड बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू condition, this one 17 will be a right child of 15। ऐसा बनाते ही आपका जो x था डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द केस, ये तो हो गया। अब थर्ड केस क्या है, एग्जाम्पल भी देखना है ना, मैं कलर बदल लेता हूं थोड़ा सा केस थर्ड के लिए, जिससे कि कलरिंग से आपको ध्यान रहे। नाउ द केस नंबर 3, in continuation of this is 2 and this is 3। केस 3 क्या होगा, if
और इसको हटा दो, x may have both child. X may have both left and right child. अब इन दिस के आपका जो एग्जांपल था इसमें कौन कौन से केस 3 होंगे जिसके 2 चाइल्ड हैं, मैं इनको सर्किल करूंगा जिनके 2 चाइल्ड हैं, ये 15, 7 एंड 13, ये क्या है तीनों, दिस इज द केस 3. कलर हमने जानबूझ के अलग लिया है, बाद में आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ये केस 2 है, ये केस 3 है, सर्किल कलर से अभी आप समझ जाइए क्या क्या हो गए, 13, 7 और 15. इस केस में x में भी क्या क्या हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, 7, 13 एंड 15. ये वो नोड है जिनके 2 चाइल्ड हैं. That is tricky now. This one is tricky and you have to think what will happen, how to delete. Suppose 7 को डिलीट करना है, अगर 7 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, सो डिलीट दिस क्या करेंगे, अब देखिए एग्जांपल, दिस इज ट्रिकी. 7, 30, मान लो 7, 13 को डिलीट करना है. नाउ लेट x equal to 13 which have 2 child. Let 13 we want to delete. क्या करेंगे, इसका हम जो BST का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लो. सी द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, गिवन BST का इन ऑर्डर होगा 3, 7, 8, 14, 15, नहीं क्या क्या था यार, 14, 15 है भी या 14, 15, 17, 19, यही था ना. ओके, देन व्हाट वी डू, 13 तो छूट गया, मिटाओ यार इसको, 1 मिनट. एट के बाद 13,
13 के बाद 14, चेक कर लेना। 14 के बाद 15, 15 के बाद क्या क्या नंबर थे यार, 14, 15, 17 एंड 19 अभी लिखा है मैंने। अभी क्या करते हैं, अगर इसको डिलीट करते हैं तो फर्स्ट आइडिया इज इन ऑर्डर में जिसको भी डिलीट करना है उसको क्या करो, फाइंड, कलर चेंज करो जैसे कि फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर। इन दिस केस क्या है, 13 के बाद क्या आ रहा, 13 को डिलीट कर रहे हैं तो इसके सक्सेसर मतलब जो बाद में आता है, 13 का सक्सेसर क्या आ गया, फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर। सो फॉर x इक्वल टू 13 सक्सेसर इज 14। ठीक है, तो क्या करो, the idea is that once we get change कर दो, change x and its successor means that is x को 14 कर दो and 14 की जगह 13 को असाइन कर दो and then thereafter क्या करेंगे, x की जगह 14, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो करें या ना करें, देन नॉट नीडेड बेसिकली, x की जगह 14 एंड देन डिलीट सक्सेसर 14। तो क्या होगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और ये 14, 15 सब बन जाएगा। देखो और सब 3 बना रहेगा। सो दिस इज द ट्रिकी वन। सक्सेसर ढूंढ लो, सक्सेसर को उसकी जगह रिप्लेस कर दो और इस सक्सेसर को डिलीट कर दो, लिंक को, दैट्स ऑल, इफ द नोड हैव 2 चेक। So these are the 3 scenarios how we can delete a node. Now you write a program for this. If anyone have any query, then I am going to see your chat box before writing a code. Otherwise, I hope it is clear. Okay, so you all are getting, no doubt. Okay, good. So 3 scenario. So easy, huh? बहुत ही आसान है. So it is clear to everyone. Good. So now you start writing a code for this. Let's say a minute. I am opening my Colab file. Just give me 1 minute. Is my Colab file visible? Is my Colab file visible? Anyone? Anyone just write in the chat box? Yes, yes. Okay, okay. So let's write a code for deletion. हमने लास्ट लेक्चर में जो नोड बनाया था वो सबको रन कर लेता हूं, नहीं तो ये फिर से नोड बन गया।
मुझको इन ऑर्डर देखो, क्योंकि इन ऑर्डर को हमको रन करना पड़ेगा इसके लिए। अब ये अभी रन हो चुका है। सर्च वैल्यू को भी कोड को यूज जरूरत पड़ेगी, तो इंसर्ट एंड नोड को भी रन कर लेता हूँ। सारे कोड पता नहीं कौन सा, ठीक है। कोड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, जस्ट सी दैट। delete a node in a binary search tree. ऑल 3 केस हो जाएंगे। So definition root target. Okay, just a minute, I am writing it. Just give me 1 minute time. So for this, let write everything we already delete code we are going to write. And इसके लिए क्या क्या रूट हो गया, बेस केस हम लेते हैं। इफ रूट इज नन, वो खाली है तो क्या डिलीट करोगे, रिटर्न रूट। और इसको क्या करेंगे, रिकर्सिवली हम करेंगे। ओके, अब रिकर्सिवली करने के लिए क्या करना है, जो भी 2-3 कंडीशंस हैं वो तीनों ही चारों हमें ढूंढनी पड़ेगी। ओके, व्हाट इट मींस, देखिए ये तो हो गया। रिटर्न रूट क्यों, रिटर्न नन करेगा ना, डिलीट क्यों करेगा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या है। क्या बनेगा केस, इफ टारगेट इज लेस देन रूट डॉट डेटा,
या तो उसके बराबर होगा या तो उसके लेस होगा, हम सर्च करते जाएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, उस नोड पे पहुंचना है जिसको डिलीट करना है। अगर वो नोड ऑलरेडी पहुंचा है तो 3 केसेस बनेंगे, या तो टारगेट होगा, वो रूट डेटा से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो एल्स केस में वो उसी पे आते हैं। तो एल्स अगर टारगेट रूट के डेटा से छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जाके उसको ढूंढेंगे। अगर ऐसा होगा तो नोड रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू इसी फंक्शन को कॉल करो। तीन केस, या तो टारगेट रूट डॉट डेटा से, अगर टारगेट बड़ा हो गया तो हम राइट में जाएंगे, लेफ्ट में नहीं राइट में जाएंगे, सॉरी। दूसरा क्या होगा, एल्स इफ कई एल्स टारगेट लेस देन रूट डॉट डेटा। अगर छोटा हो गया तो क्या करेंगे, रूट डॉट इसको राइट में जा रहे हैं तो इसको राइट कर लीजिए। अब लेफ्ट इक्वल टू रिकर्सिवली फिर से कॉल कर देंगे। कब तक कॉल करेंगे, जब तक या तो छोटा है तो बड़ा होगा, या उसी के इक्वल होगा तो डिलीट करेंगे। जब डेटा इसके इक्वल होगा तो डिलीट करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, या तो लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे। जैसे ही इक्वल होगा तो क्या होगा, इसी दैट्स वाई एल्स लगेगा। आप क्यों, थर्ड कंडीशन। अगर छोटा हो गया टारगेट तो लेफ्ट में ढूंढते रहो, बड़ा हो गया तो राइट में ढूंढते रहो, और इक्वल हो गया तो डिलीट कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट केस था कि जिसको डिलीट करना है उसको सर्च करो, और नहीं मिलेगा कुछ तो ना हो गया, इफ नॉट नोड, कुछ मिला ही नहीं। तो इसको रूट, इसको करेंगे रूट इज नन की जगह, ओके देखते हैं। एल्स में अब क्या होगा, एल्स में जिसको डिलीट करना वहां तो पहुंच गए, जब वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, या तो उस नोड के जिसको डिलीट करना है वहां जैसे ही मिल गए, तो थर्ड केस, या तो वहां पर मिल गया या वो लेफ्ट में ढूंढना है या राइट में, जैसे ही मिल गया तो तीन, तो क्या होगा, दो केस। अब उस नोड का एक चिल्ड्रन है कि दो है कि जीरो है, वो लीफ नोड तो नहीं है। सो इफ नोड इज, इफ टारगेट नोड with only with no child or only one child, वो मिल गया, उसके जीरो है या एक है, या तो लीफ है, या दोनों के इसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो इसको कैसे डिलीट करेंगे,
इस केस में जस्ट अ मिनट, यू थिंक आउट नाउ. नो चाइल्ड या वन चाइल्ड के केस में कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है. तो ये हो सकता है उसके 0 चाइल्ड हो, लेफ्ट में कोई चाइल्ड ना हो, उसके राइट में कोई चाइल्ड ना हो. So what we can do here, if root dot left is none, रूट का लेफ्ट अगर नन हो गया, जो डिलीट करना है उसका लेफ्ट नन हो गया, तो या तो उसके राइट भी नन है, या फिर उस केस में उसका एक राइट चाइल्ड ही हो सकता है बस. उस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट इज नन, देन एक टेम्परेली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज बिना उसकी हो जाएगा रूट डॉट राइट, लेफ्ट खाली है, किसी नोड को मिल गया, मतलब लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, और उसका एक ही चाइल्ड होगा या 0, तो या तो राइट में होगा या राइट वाला भी नन होगा, ये होगा ना. तो रूट को हमें तो रूट को डिलीट करना था. अगर राइट चाइल्ड है और नोड का एक ही चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड को हमने टेम्प में स्टोर कर दिया है, देख लो. अगर उसका लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है और राइट में या तो चाइल्ड होगा या तो नहीं होगा, अगर राइट में चाइल्ड है तो टेम्प में हो गया, अगर नहीं है तो टेम्प नन हो जाएगा, उसमें क्या है, और होगा तो टेम्प में कुछ एलिमेंट आ जाएगा. तो रूट इक्वल टू नन एंड देन रिटर्न टेम्प. वो टेम्प को रीड कर देगा कि इसी को हम डिलीट कर रहे हैं, उसी टेम्प को राइट में है कि वो नन है या क्या है, उसको कर देना है डिलीट. तो डिलीट करना है तो उसको रिटर्न कर लिए, जिसको भी डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि नोड पे तो नन आ गया, रूट पे नन आ चुका है, तो वो वैल्यू टेम्प में आ गई. इफ हो गया, एल्स इफ रूट डॉट राइट इज नन, ऐसा हुआ तो टेम्प में लेफ्ट वाले को डाल दो, रूट डॉट लेफ्ट नोड इक्वल टू नन, रूट इक्वल टू नन, लेफ्ट इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं कर रहे हैं, एंड रिटर्न टेम्प. ठीक, इसके बाद क्या होगा, यहां से अब 2 चाइल्ड करना है.
target node with 2 children, इसके लिए क्या करेंगे, get the in order successor, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा वही ढूंढना है। अब इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढने के लिए प्रोग्राम लिखना है, राइट ए कोड फॉर इन ऑर्डर सक्सेसर, तभी तो होगा। इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक, इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, इफ यू सी द लॉजिक ऑफ इन ऑर्डर, तो या तो हम सक्सेसर के लिए कोड लिखें एक अलग से, या मिनिमम वैल्यू नोड लिख दें। मिनिमम वैल्यू का नोड मतलब कहीं से स्टार्ट कर दें। अभी हम समझा देते हैं इसको, पहले हम एक कोड अलग से, एक और डेफिनेशन यहां लिख लेते हैं, तब आपको समझाएंगे। मिनिमम वैल्यू इन बीएसटी, मिनिमम वैल्यू सबसे मालूम है, इन ऑर्डर में जब हम करते हैं सबसे लेफ्ट वाला ही होता है, जहां से भी दो सबसे लेफ्ट जो होता है वही सबसे छोटा होता है। तो इसका आसान डेफ अगर मिन वैल्यू का लिखें, और यहाँ पे कोई रूट पास कर दीजिए, जहां से स्टार्ट कर, रूट कुड बी एनी, सो करेंट इक्वल टू रूट, वही मिनिमम होगा। और अगर बीएसटी है तो मिनिमम कहाँ अप्लाई करेगा, उसके लेफ्ट में जाइए, एक जहां से भी स्टार्ट कीजिए उसके लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है तो सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट 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 ट्री जाइए नोड पे, और जो लास्ट में होगा वही होगा। सो व्हाइल करेंट डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, जब तक वो नन नहीं है, करेंट इक्वल टू करेंट डॉट लेफ्ट, जैसे ही नन हो गया तो क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए इसको, एंड दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। अभी रन करेंगे इसको, एक बार मिनिमम मिल गया। अब सक्सेसर्स के केस में क्या होता है, इफ यू जस्ट सी द नोट व्हिच आई डिस्कस, सो हम क्या करेंगे, सक्सेसर ढूंढने के लिए मिनिमम वैल्यू का यूज कर लेंगे। सो टू गेट दिस सक्सेसर वी यूज दैट रूट डॉट डेटा इक्वल टू मिन वैल्यू वाला जो फंक्शन लिखा उसको कॉल कीजिए, उसमें जो डिलीट करना उसका राइट से शुरू करेंगे। अब उसके राइट वाले में जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू फंक्शन रूट के राइट से स्टार्ट करेगा, नोड जो होता है जहां से स्टार्ट, उसके राइट वाले मतलब उसके जो किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे उसके राइट में जो मिनिमम होगा वही उसका सक्सेसर होगा। इन ऑर्डर में क्या होता है, सीक्वेंशियल, तो उसके राइट का मिनिमा, तो उसके राइट का मिनिमा जैसे इन ऑर्डर लिख देते हैं वही सक्सेसर होता है, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट द सक्सेसर। अभी हम रन करके भी देखेंगे, फिर समझाऊंगा। अगर सक्सेसर मिल गया तो क्या करेंगे, रूट डॉट
राइट इक्वल टू करके फिर से मैं कोड पे समझाऊंगा, देन वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट वेट, क्योंकि ज्यादा बड़ा कोड। रिटर्न रूट, ये जो है गलत हो गया है। इस पे पहले अभी आई विल गो अगेन वन बाय वन एंड अगेन आई विल डिस्कस। पहले एक एक कोड को, बाइनरी ट्री वही है, इसको कॉल करते हैं, देन वन बाय वन डिस्कस एंड आई विल गो टू पीपीटी सो दैट कोड यू अंडरस्टैंड। पहले क्या कर देते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि साथ में दिखेंगे, और रूट से कर दिया, ठीक। ये तो ट्रेवर्सल हो गया। नाउ फॉर डिलीट, कोड को कॉल करो, डिलीट एंड रूट तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। कौन सा नोड डिलीट करें, जो सबसे ऊपर सिंगल नोड वाले, कौन सा लीफ वाले, 17 को करता हूं मैं। इसके सिंगल लीफ वाले को पहले डिलीट करते हैं, फिर सिंगल चाइल्ड को करेंगे, ठीक है। और डिलीट करने के बाद हमें तो रिटर्न कर दिया रूट, फिर से फिर ट्रेवर्स कर देंगे कि हमें पता चल जाए। ट्रेवर्स एंड फिर से प्रिंट दिस इज फॉर न्यू लाइन, कि नया लाइन हम दे दिए, एंड फिर से इन ऑर्डर कर दो, इसमें भी रूट को पास करो। else if target लेस देन रूट डाटा, तो रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू डिलीट, अच्छा रूट डॉट लेफ्ट होगा ना यहाँ पे, अभी डिलीट हुआ ही नहीं। 17 तो है ही नहीं ना नोड में, ओके। 17 इज नॉट देयर, पेज पे हमने किया था उसमें 17, बट जो हमने क्रिएट किया था कल ट्री, उसमें 17 है नहीं। 3 7 8 13 14 15 18 19, तो इसी में से डिलीट करना होगा, सॉरी। तो कुछ नहीं डिलीट हुआ। अब मैं डिलीट 18 को करता हूं, 18 देखिए डिलीट हो गया, एंड 3 7 8 11 13 14 सीक्वेंस मेंटेन है, ठीक है। अब मैं 13 को डिलीट करता हूं,
तो 3, 7, 11, 14, 15, 19, क्योंकि न्यू ट्रेवर्सल में भी ऑलरेडी 18 डिलीट था, अब ये हो गया. So we are able to delete. Now, what is happening in this case? मिनिमम वैल्यू नोड में क्या हुआ, रूट डॉट राइट को पास कर रहे हैं. ठीक है, एक चाइल्ड हुआ तो ये कंडीशन हो गई. इफ रूट लेफ्ट इज नन, तो जैसे ही एक चाइल्ड होगा तो या तो रूट लेफ्ट नन हो जाएगा या रूट राइट नन हो जाएगा. और दो चाइल्ड होंगे तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी. ठीक है, जिसको डिलीट करना है या तो उसके एक चाइल्ड होंगे या जीरो चाइल्ड होंगे, दो चाइल्ड होंगे. एक चाइल्ड होंगे तो लेफ्ट हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं. तो इफ एक चाइल्ड हुआ तो डिलीट, दो चाइल्ड हुआ, एक चाइल्ड लेफ्ट और राइट दोनों सकता है, उसके लिए अलग अलग केस हो गए. बट दोनों के केस में अगर दो चाइल्ड है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट. सो मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन क्या करता था, इफ यू मिनिमम वैल्यू क्या करेगा, रूट डॉट राइट. तो 13 से शुरू किया इसने. तो 13 से शुरू करेगा तो ट्री में अगर मिनिमम का कोड देखो तो ये 13 से शुरू करेगा. रूट को रूट डॉट राइट पास हो रहा है. तो 13 से शुरू करके उसके जो स्टार्ट उसके राइट से, तो 13 का राइट तो उसमें 14 था, वहां से स्टार्ट करके मिनिमम ढूंढेगा, अनसक्सेसर को ढूंढ लेगा. जो रिमेनिंग सब ट्री है उस स्टार्टिंग पॉइंट रूट डॉट राइट के स्टार्टिंग पॉइंट से वो मिनिमम ढूंढेगा, ना कि रूट से मिनिमम. So any node you can pass as this root. So root dot right, and so this root data is coming. And so हमारा टारगेट क्या होगा डिलीट का, रूट डॉट डिलीट दिस. रूट डॉट राइट के नोड में से रूट डॉट डेटा को डिलीट करना है. Slightly tricky, but you try to understand this code, how we can delete this. सक्सेसर ढूंढिए और सक्सेसर की को मिलने के बाद उसी को पास करना. तो दिस इज सक्सेसर की. दिस डेटा इज बेसिकली getting a successor value. ठीक, दिस इज सक्सेसर वैल्यू फाइंड के लिए हमने ये यूज किया है. देन अगेन इसको डिलीट किया. रूट डॉट राइट में क्या होगा, ये डिलीट के वजह से इसके राइट में शिफ्टिंग हो रही है. सक्सेसर मिल गया तो सक्सेसर की वैल्यू को हमें वहां ट्रांसफर करना था और हमें डिलीट कर देना था. Let's see if anyone have any question. If my voice is not coming when you are writing, am I audible or not? Okay, so just 1 minute break and then the questions I will take. This there's a 1 minute break. Okay.
Okay, so I'm not getting what's your question is and where is the problem in your case. Okay, now minimum value root. No, so this is where you are deleting. Okay, 18 you are unable to delete. Root 18, yes, check it. Why your is not working? Let maybe root target. Okay, you just see your code, what you are writing. You have interchange in the code. Who is that code I am reading? If target greater than root data, तो टारगेट अगर रूट डेटा से बड़ा है तो कहां ढूंढेंगे? राइट में। तो आपने जो कंडीशंस लगाई है ना रूट लेफ्ट और राइट की, वो इंटरचेंज कर दिया है। टारगेट ग्रेटर देन रूट डेटा, इन दैट केस रूट डॉट राइट इक्वल टू डिलीट रूट डॉट राइट। अगर टारगेट बड़ा है रूट डेटा से तो क्या करेगा? राइट में सर्च होगा। हमने पहले राइट लिखा है, पहले फिर लेफ्ट। व्हाट यू आर डूइंग, रिवर्स ऑर्डर। conditions you check or you change the conditions. Okay, in program you change the conditions. So this condition you just, if target is greater than, then तो what you do, this target greater than को less than कर दो अपने कोड में, then it will run। और यहाँ पे greater than को less than को greater than कर दो। हमने सीक्वेंस लेफ्ट को नीचे लिखा है और राइट को पहले लिख दिया है। That's why, and you are doing just different, but the conditions you are writing same, whatever I have written, but the below part you are not writing the same. Are you getting? Do this। ये क्या हो रहा, डिलीट हो रहा है या गायब? No, that is not part of your tree. Now everyone is getting or not? If anyone have a query, then write. I don't know. You check it, Alok. If you have any query, you are saying that तुम्हारे में अलग तरीके से रन हो रहा है। शेयर करो कोड को। Where is the code? Okay. If target is less than root data, root dot left target, else if target greater than root data, then root dot right, delete root dot right target, else if root dot left is none, temp equal to root dot right, root equal to none, return then। So क्या 13 डिलीट नहीं हो रहा? Your answer I am unable to see। कोड तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा इधर। I am unable to see। मीन अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन का नाम, मिनिमम फंक्शन का नाम क्या है? यही था ना, चेक कर लेना।
मिन वैल्यू लिखे हो, मिन अंडरस्कोर लिखे हो, वो अपने प्रोग्राम में चेक करना। रूट डॉट डेटा इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, देन रूट डॉट राइट डॉट डेटा, रूट डॉट राइट इक्वल टू ये रिटर्न रूट पे तुमने कमेंट कर दिया है, तुम रूट को रिटर्न ही नहीं कर रहे हो। द लास्ट लाइन ऑफ द कोड बिफोर इन ऑर्डर रूट, रिटर्न रूट को तुमने कमेंट क्यों किया है? उसकी पोजीशनिंग सही नहीं है। अलाइनमेंट करो, ये कमेंट क्यों किया है रिटर्न डॉट रूट को? ठीक करो इसे। और डेफिनेशन है ये जो इफ फर्स्ट इफ है इसके नीचे लाओ इंडेंशन, दिस रूट में कमेंट क्यों किया? आई डोंट नो। रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम, यू हैव टू रिटर्न द रूट। रूट में मॉडिफिकेशन हो गया ना सब कुछ, तो रूट क्या है? तुम्हारे केस में 13 को डिलीट किया, रूट को रिटर्न ही नहीं किया, तो फिर से 13 ही ले लिए। आर यू गेटिंग? इसलिए आ रहा आलोक क्योंकि अलाइनमेंट ठीक नहीं है आपका। रिटर्न की जो कहां पे लिखे हो रिटर्न को, इंडेंटिंग उसका ठीक नहीं होगा, इंडेंशन उसका चेक कर लो, इसलिए वो आ रहा। ठीक है, so let I will check syllabus now. You just do this in between. I am looking at syllabus. So what is there? Now come this, तुम्हारे में क्या रहा? अरे तो तुमने न्यू लाइन के लिए वो कोड लगाओ। हमने न्यू लाइन के लिए एक एक्स्ट्रा डिलीट किया था, प्रिंट किया था। ओके, डू दिस, यू सी माई कोड, इन ऑर्डर के लिए करो। और एक्चुअली क्या हो रहा है, डिलीट होते जा रहा है ना ट्री, फिर से ट्री को रन करो। जहां पे तुमने ट्री बनाया था उसको फिर से रन करोगे तो कंप्लीट ट्री आएगा, अदरवाइज ये डिलीट हो गया। ऑलरेडी 13 डिलीट हो गया है, तो कहां से डिलीट होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑलरेडी 13 इज डिलीटेड। हेलो, व्हाट यू हैव टू डू, लुक एट योर पाइथन एंड सपोज आई हैव डिलीटेड। अब मैं बार बार इसको 13 डिलीट करूंगा तो क्या होगा? है ही नहीं 13, तो एक ही चीज आएगा ना, क्योंकि 13 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, नोड ही नहीं है। अगर 13 को फिर से डिलीट करना है तो पहले मुझे नोड को क्रिएट करना पड़ेगा। नोड क्रिएट का ये जो कोड था ना, फिर से रन करो। ये रन हुआ, अब देखो डिलीट करूंगा तो 13 वाला नीड आ जाएगा। अब देखो, कहाँ गया यार? पहले ये नोड क्रिएट करें। देखो 13 आ गया। तो जब तक फिर से वो सारे कोड 13 है ही नहीं, डिलीट करोगे। अब आप डिलीट करते जा रहे हो तो आपके करंट मेमोरी से वो नोड डिलीट हो चुका है, और उसी में बार बार मैं करना, देखो दोबारा आप करूंगा फिर से डिलीट, क्या होगा 13? तो क्योंकि पेरेंट नोड में से 13 ऑलरेडी जा चुका है, तो अब 13 नहीं डिलीट होगा। अब बार बार करो कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 13 डिलीट हो चुका है। ओके, इसलिए ये होता रहेगा और खाली होता जाएगा। आपका ओरिजिनल प्रिजर्व नहीं है, ऑलरेडी मेमोरी से डिलीट हो चुका है। अब नाउ आई होप इट इज क्लियर आलोक। हाँ तो होगा ही ना, करेक्ट। ओके, now anyone have any query, then write. Just I am waiting for query.
No query, then very good. Now the next topic start. Just introduction I will give, and then we'll collab file. Aman, you have not started writing. What you will do, collab file ही run कर दोगे तो program सीखोगे नहीं. I will share. I did last time also, and I will share. But point is, until unless you people will not write, there will be a problem. You just check it, Alok, now. Either you remove that code or now. Okay. Now I will discuss MPY file. अलग-अलग फाइल सबके लिए बनाते हैं, उसको रन करेंगे. That I will discuss from the next उसमें कि एक ही कोड इतना बड़ा हो गया, कौन सा पार्ट कौन सा करना है, तो हम क्या क्या करेंगे नए वाले में. We will do that कि डॉट पीवाई फाइल बनाएंगे और उस फाइल को ही रन करेंगे, जिससे कि एक कोड एक जगह हो. अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग फाइल बनाएंगे, जिससे कि ये जो डिबगिंग बार बार रनिंग और ये करना वो मिस ना हो. ठीक है, दैट आई विल डू. The next topic on this before going to the B tree and then the graph is AVL tree. So the idea of AVL tree is AVL tree basically, why the name AVL is the name of scientist who developed this. तो बाइनरी सर्च ट्री आपने देख लिया, ठीक है. Just for sake of understanding, then self-balancing binary search tree. AVL tree you can say as a self-balancing binary. Self-balancing का मतलब यह है कि उसकी बैलेंस बाइनरी ट्री बनाता रहे. तो AVL tree, basically the name Eldalson Veleski and Evgeny Landlis, who invented AVL. So name is or scientist who developed AVL tree. Basically a self-balancing binary search tree we will talk about. It's a type of binary search tree which is self-balancing. And self-balancing है तो binary search tree की height को maintain करेगा. For example, before closing for today's session, let's see the example, and then I will leave for today's session. Just one example. Again, this part I will repeat, but just for the sake of starting what we are going to do now. AVL tree, or you can say a self-balancing BST. बाइनरी सर्च ट्री आपको मालूम है, लेफ्ट राइट सब बराबर होगा. Okay. Now see the example. To example 13, 7, 3, 9, 8, all are binary search tree. So आप चेक करो कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं.
7, 3, 13, 8, 9, 14. Just a minute. Both are same or different? Just note it down. Both are same. नंबर सब में सेम ही है. 14, 15, 19, 18 सारे नंबर हैं. जो इसमें है वही नंबर इसमें है. दोनों ही बाइनरी सर्च ट्री हैं. एक बैलेंस है, एक अनबैलेंस है. ठीक है. तो एक ही तरह इसमें अगर कोई 18 को सर्च करोगे तो कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 बार इफ कंडीशन तब 18 मिलेगा. इस तरह का बैलेंस ट्री है तो 1, 2, 3 बार करेंगे तो मिल जाएगा. तो जब बैलेंस होगा तो ढूंढना आसान होगा. और एक ही तरह की बाइनरी सर्च ट्री को देखो 2 तरीके से हमने लिख दिया. तो अगर इस फॉर्म में लिखते हैं जैसा पहले वाला है, फर्स्ट वाला, देन ढूंढना आसान होगा. कम ऑपरेशन में जल्दी से ढूंढ देंगे. और ये बैलेंस भी है. सो द गोल ऑफ एवीएल ट्री इज डायनामिकली इफ कोई इंसर्ट या डिलीट होगा तो क्या बेस्ट पॉसिबल उसके लिए बैलेंस ट्री पॉसिबल है उसमें कन्वर्ट करना. कन्वर्टिंग अनबैलेंस टू बैलेंस वेयर वी विल टॉक अबाउट AVL tree. Okay, converting unbalanced search tree to the balanced search tree. I will discuss about AVL tree. लॉजिक अब रोटेशन करेंगे, घुमाएंगे इसको यहां इसको वहां ले जाएंगे, कोड लिखेंगे और बैलेंस कर देंगे. बैलेंस करते क्यों? कि सर्चिंग और वो आसान हो जाती है. बट हाउ द एल्गोरिथम्स विल राइट फॉर ऑल दिस टास्क to make a balance or AVL tree. That's what the next target and agenda for the next week. Okay, the problem is clear to everyone. I'm talking about the problem, not solution. I hope you are all getting the problem, what we have to do. I'm discussing. I don't know, let's दिख रहा है कि नहीं? Thank you, sir. So this is the problem of AVL tree which we'll discuss. If let me दिखाया usual, तो again I will repeat what I am setting that what next I am going to discuss. कैसे बाइनरी सर्च ट्री जो अनबैलेंस्ड भी हो तो उसको ऑटोमेटिकली देखेंगे. हाइट कितनी बेस्ट मिनिमम हाइट में कितने कम से कम बैलेंस ट्री बनाए, उस एवीएल ट्री में हम इसको ही डिस्कस करेंगे, इसके कोड, इसके लॉजिक. इसके बाद हम ग्राफ थ्योरी, ग्राफ, उसमें ट्रेवर्सल, शॉर्टेस्ट पाथ, स्पैनिंग ट्री, वो बाद में, थोड़ा और बाद में. आइडिया इज क्लियर. आइडिया इज टू फाइंड आउट, कन्वर्ट ए अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री to a balanced search tree. That's what the AVL tree. इसके जो algorithms and detail we will discuss. I hope the problem would be clear to everyone, and then we discuss formally in the next lecture. So with this, I will stop today's session. Anyone have any query? Then let me know.